بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو ہے صدقۃ الفطر کے تعلق سے۔ بہت سے احباب یہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کی شرعی مقدار کیا ہے، اور گیہوں کے علاوہ گیہوں، جو، کشمش، کھجور وغیرہ کے علاوہ اگر ہم کسی اور چیز سے صدقۃ الفطر کو ادا کرنا چاہے تو شرعی حکم اس سلسلے میں کیا ہے۔ مثلاً ساگ، سبزی، انڈا، کیلا، پھل فروٹ، دال، چاول، مکئی، چنا، دودھ، دہی، گوشت وغیرہ کے ذریعے اگر ہم اپنا صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو شریعت میں کیا ان چیزوں کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتلا دوں، چند چیزیں اسی کے ذیل میں آ جائے گی کہ جو منصوص چیز ہے شریعت کے اندر، جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، پہلا حکم تو وہی ہے کہ منصوص اشیاء سے ہم صدقۃ الفطر کو ادا کریں، یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ تاہم اگر کوئی آدمی منصوص اشیاء کے علاوہ کسی اور چیز سے صدقۃ الفطر اپنا ادا کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کو اس کی اجازت ہے، جس کی تفصیل ابھی میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی شرعی مقدار کیا ہے، پھر تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ صدقۃ الفطر کی شرعی مقدار 1 صاع کھجور یا کشمش یا جو ہے۔ 1 صاع۔ اب صاع کس کو کہتے ہیں وہ تفصیل ہے اس کے اندر، تو میں اس کا موجودہ اوزان کے حساب سے آپ کو تفصیل بیان کر دوں کہ 1 صاع کی مقدار کتنی ہوگی۔ یا اس کے علاوہ نصف صاع گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو ہے۔ گیہوں سے ادا کرنا ہے تو نصف صاع دیجیے، ستو سے ادا کرنا ہے تو نصف صاع دیجیے، آدھا صاع آٹے سے ادا کرنا ہے تو آدھا صاع گیہوں کا آٹا دے دیجیے، آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ میں نے یہ تفصیل اپنی کتاب میں صاع کے بیان میں تفصیل نقل کر دی ہے۔ تاہم میں پھر آپ کو بتلاؤں کہ 1 صاع کی جو مقدار موجودہ اوزان کے حساب سے فقہا نے نقل کی ہے وہ یہ کہ 1 صاع 3 کلو، کتنا؟ 3 کلو 149 گرام، 50 میں 1 کم، 149 گرام 280 ملی گرام 1 صاع کی مقدار بنتی ہے۔ پھر سنیں، 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام بنتا ہے، اور نصف صاع کی مقدار فقہا نے یہ نقل کی ہے 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام، اس سے کم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر اس سے آپ کم دیتے ہیں تو آپ کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص اس مذکورہ مقدار کی قیمت صدقۃ الفطر میں ادا کرنا چاہتا ہو تو اس کو اس کی قیمت ادا کرنے کی بھی فقہا نے اجازت دی ہے۔ حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح کے اندر ہے، وَهِيَ نِصْفُ صَاع مِن بُرٍّ أَوْ دَقِيقَهُ أَوْ سَوِيقَهُ أَوْ صَاع تَمْرٍ أَوْ زَبِيب أَوْ شَعِير۔ یہ حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح اس کے کتاب الزکوٰۃ کے اندر جو ہے اس کو نقل کیا ہے، باب صدقۃ الفطر، صفحہ نمبر 724، جو دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کا چھپا ہوا 1997 عیسوی 1418 ہجری کا چھپا ہوا نسخہ۔
نصف سا کی مقدار در مختار وغیرہ کے اندر بھی یہی نقل کیا ہے، نصف سا من بر او دقیق او سویقہ او زبیب، یہ در مختار تیسری جلد 318 صفحہ جو ریاض سعودی عرب کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ ہندی نسخہ جو زکریہ بک ڈیپو دیوبند کا ہے اس کے بھی 318 صفحے پر ہے۔ شامی میں ہے نصف سا دقیق بر او سا دقیق شعیر یساویانی نصف سا، اس طریقے کی عبارت بڑی تفصیل سے فتاوی شام کے اندر نقل کیا ہے، کتاب الزکاہ باب صدقۃ الفطر قبیل مطلب فی تحریر الساع والمد والمن والرطل، تیسری جلد صفحہ 318 اور 319 جو ریاض سعودی عرب کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ جو دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا در مختار کا نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 364 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو فرفور کا چھپا ہوا نسخہ ہے عبد الرزاق الحلبی رمضان بوتی وغیرہ کی تحقیق کے ساتھ، اس کے حاشیہ ابن عابدین قسم العبادات کتاب الزکاہ باب صدقۃ الفطر، اس کی چھٹی جلد صفحہ 156 جو دمشق حجاز کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے نصف سا کی بحث اور ایک سا کی بحث تھی کہ ایک سا کس کو کہتے ہیں اور کتنا موجودہ زمانے میں ایک سا کا وزن کتنا ہوگا اور نصف سا کا وزن کتنا ہوگا۔ یہ تو منصوص اشیاء تھی، گیہوں، جو، کشمش، کھجور وغیرہ کے اوزان کے حساب سے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنا صدقۃ الفطر ان منصوص اشیاء کے علاوہ کسی اور چیز سے ادا کرنا چاہے، مثلا چاول، مسور، دال، مکئی، گیہوں، چنا، دودھ، دہی، گوشت یا لسی، پنیر، گھی یا سبزی وغیرہ، پھل فروٹ وغیرہ یا اور کسی چیز سے ادا کرنا چاہتا ہے، تو کیا صدقۃ الفطر کو منصوص اشیاء کے علاوہ کسی اور چیز سے ادا کرنے کی بھی اجازت ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے اور اس میں کس چیز کا اعتبار ہوگا؟ کیا وزن کا اعتبار ہوگا یا قیمت کا اعتبار ہوگا یا گنتی کا اعتبار ہوگا؟ مثلا کسی نے انڈا دینا ہے صدقۃ الفطر میں تو 1 2 3 4 5 دے دیا تو کیا اس سے صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا؟ یا کسی نے پھل دینا ہے تو آم دے دیا یا سیب دے دیا، انار دے دیا تو 2 4 دے دیا تو کیا اس سے صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا؟ تو اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی منصوص اشیاء گیہوں، جو، کشمش، کھجور، اس کے علاوہ، یہ تو شریعت میں احادیث میں فقہاء نے بھی نقل کیا ہے، حدیث میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے، اس کے علاوہ موجودہ دور میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے لوگ اپنا صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے، مثلا چاول، مسور، دال، مکئی، انڈا، جو، چنا، گوشت، دودھ، دہی، پنیر، گھی، پھل فروٹ، سبزی، ترکاری اور بھی مختلف اشیاء، کپڑا وغیرہ، برتن وغیرہ کسی کو دینا ہے یا اور کوئی چیز، تو ان چیزوں سے اگر کوئی صدقۃ الفطر ادا کرے تو ادا کیا جائے گا یا نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں یہ جاننا چاہیے کہ اب ایسی صورت میں مذکورہ اشیاء میں وزن اور گنتی کا اعتبار نہیں ہوگا، مذکورہ اشیاء میں وزن اور گنتی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثلا کسی نے چنا دینا ہے تو اب چنے میں وزن کا اعتبار نہیں ہوگا کہ نصف سا کے حساب سے دے دیا جائے، یا کسی نے انڈا دینا ہے، پھل دینا ہے، آم دینا ہے، سیب دینا ہے، انار دینا ہے، تو اب اس میں گنتی کا اعتبار نہیں ہوگا کہ 1 2 3 دے دو یا 10 دے دو، 5 دے دو، گنتی کا اعتبار نہیں ہوگا، تو پھر اعتبار کس چیز کا ہوگا؟ تو لکھتے ہیں کہ اس صورت میں مذکورہ اشیاء میں قیمت کا اعتبار ہوگا، گنتی اور وزن کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ منصوص تو ہے نہیں۔ اب ہم نے ان چیزوں کو مذکورہ اشیاء پر قیاس کیا ہے، لہذا اس چیز میں مذکورہ اشیاء کی قیمت کا اعتبار ہوگا کہ 1 سا گیہوں، 1 سا جو، کھجور،
किशमिश वगैरह और निस्फ सा गेहूँ, सत्तू, आटा वगैरह जो है, इसका जो कीमत बाजारी एतबार से है उसको देखा जाएगा। लिहाजा इस चीज़ में कीमत का एतबार होगा। यानी निस्फ सा गेहूँ यानी 1 किलो 574 ग्राम और 640 मिलीग्राम, ये निस्फ सा गेहूं का वजन है। या 1 सा जौ, खजूर, किशमिश, 1 सा 3 किलो 149 ग्राम 280 मिलीग्राम। इसकी जो कीमत मौजूदा दौर में, ये जो दोनों मैंने सा बतलाए हैं, दोनों वजन बतलाए, निस्फ सा और 1 सा, मौजूदा दौर में बाजार में जो इसकी कीमत होगी उस कीमत के बकदर चावल, दाल, मसूर, राई, मकई, अंडा, जवार, चना, गोश्त, दूध, दही, कपड़ा, अलसी, फल, फ्रूट, सब्जी, तरकारी, ये सब दिया जा सकता है। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। कीमत का इस सूरत में एतबार होगा। इन चीज़ों को सदका फितर अदा कर दिया जाए इन चीज़ों से तो अदा हो जाएगा, यही फितरे की रकम होगी। चुनांचे इस मसले को मैंने कयास किया। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं एक सवाल के जवाब में। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं फतावा महमूदिया के अंदर, बड़े मुफ्ती साहब कहते हैं कि चावल से सदक़तुल फितर अदा करने के बारे में हजरत लिखते हैं कि चावल से सदक़े फितर अदा करने के मुतालिक कोई नस मौजूद नहीं है। नस से मुराद कोई फ़िक़्ह की कोई सरीह इबारत भी नहीं है और न ही अहदीस रसूल में इसकी कोई सराहत मिलती है। लिहाजा कोई नस मौजूद नहीं है, लिहाजा इसमें कीमत का एतबार होगा। इस सूरत में कीमत का एतबार होगा। इसी तरह अक़रब मवाज़े में गेहूं या जौ की कीमत मालूम करके उस कीमत के मुवाफिक चावल दे दिया जाए। जैसा कि मैंने भी आपको बतलाया कि मज़कूरा चीज़ों में दूध, दही, अनाज, चावल, दाल, मसूर में अगर किसी को देना है तो इस सूरत में वज़न और गिनती का एतबार नहीं होगा। अंडा दे रहा है तो इसमें गिनती का एतबार नहीं, चावल दे रहा है तो वज़न का एतबार नहीं होगा। तो इस सूरत में कीमत का एतबार होगा, जैसा कि मैं इसकी तफसील अभी आपके सामने बयान किया हूँ। लिहाजा कीमत का एतबार करते हुए कि जो जिस निस्फ सा गेहूं की कीमत कितनी बनती है मार्केट में, मसलन एक फ़र्ज़ कर लीजिए मैं आपको बतलाऊं कि 50 रुपया बनती है, तो 50 रुपये का आप चावल ख़रीद के दे दीजिए। 100 रुपया बनता है तो 100 रुपये का चावल ख़रीद के दे दीजिए। या इसी तरीके से किसी को किशमिश से अदा करना है, खजूर से, जौ से अदा करना है, तो एक सा जो 3 किलो और जो मैंने अभी बताया कि 3 किलो 149 ग्राम 280 मिलीग्राम एक सा का वज़न है। अब समझिए कि एक सा खजूर की कीमत, 3 किलो खजूर की कीमत फ़र्ज़ कीजिए कि 1000 रुपया है या 800 या 500 या जो भी कुछ है, तो आप 500 रुपये का किसी को कोई चीज़ खरीद करके दे दीजिए, पूरा दीजिए, उसमें कोई कमी नहीं की जा सकती कि हाँ 450 रुपये का हुआ तो मैं 450 रुपया दे दूँ, 50 रुपया अपने पास रख लूँ। इसकी आपको इजाज़त नहीं होगी, आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, तभी आपका सदक़ा फ़ितर अदा होगा। अगर आप रख लिए है 5 रुपया भी रख लेते तो आपका सदक़ा फ़ितर अदा नहीं होने वाला। इसको कान खोल करके सुन लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे 10 रुपया तो है, क्या हुआ? तो ये 10 रुपया है, क्या हुआ है? आपका सदक़ा फ़ितर अदा नहीं हुआ, आप जानो आपका रब जाने। फिर इसलिए ये तफसील है इसके अंदर, फ़ुक़हा ने इसकी तफसील इसके अंदर नकल की, इसलिए मैं आपको इतनी तफसील बयान कर रहा हूँ। ये इबारत हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखी है कि कीमत का एतबार होगा, फतावा महमूदिया जो मीरठ का छपा हुआ हज़रत मुफ्ती फ़ारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ के साथ, उसके बाब सदक़तुल फ़ितर बउनवान चावल वग़ैरह से सदक़े फ़ितर अदा करने की सूरत, जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 383 पर हज़रत ने नकल किया है। मुफ्ती फ़ारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ के साथ सन इशात 1430 हिजरी 2009, जो मकतबा महमूदिया अलीपुर हापुड़ रोड मीरठ यूपी इंडिया का
छपा हुआ है उसके अंदर। हज़रत मुफ्ती क्या नाम है, शब्बीर अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहू ने अपनी किताब फतावा कासमिया में भी यहाँ से मुस्तफ़ाद किया है। बाब सदक़तुल फ़ित्र, बउनवान है चावल के ज़रिए से सदक़े फ़ित्र अदा करना। सवाल नंबर 4866, जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 622 और 623 पर हज़रत ने नकल किया है। सवाल नंबर 4867 पर भी इसको नकल किया है। पहला एडिशन जो मुहर्रम हराम 1437 हिजरी जो मकतबा अशरफिया बुक डिपो देवबंद का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। लिहाजा ये तफसील से आपको मालूम हो गया कि आप अगर किसी मनसूस अशिया के अलावा किसी और चीज़ से सदक़तुल फ़ित्र अदा करना चाहता है तो आपको इसकी भी इजाज़त है, लेकिन इसमें गिनती और वज़न का एतबार नहीं बल्कि कीमत का एतबार होगा। मसलन आप गोश्त देना चाहते हैं किसी को सदक़े फ़ित्र में तो आपको गोश्त भी देने की इजाज़त है, लेकिन इसमें वज़न का भी एतबार नहीं होगा, और अंडा देना चाहते तो इसमें गिनती का एतबार नहीं बल्कि कीमत का एतबार होगा। कीमतन जितना होता है उसके हिसाब से निस्फ सा या एक सा का जो वज़न का जो कीमत होती है उसके हिसाब से आप सदक़तुल फ़ित्र अदा कर दीजिए, आपका अदा हो जाएगा, ये जायज़ है। चुनांचे दुर्र मुख्तार के अंदर इबारत है, शामी दुर्र मुख्तार वगैरह के अंदर है, वमालम युनस्सा अलैहि का ज़रवतिन व खुब्ज़िन युअतबरु फ़ीहिल क़ीमा। इसी इबारत से मैंने आपके सामने मज़कूरा तमाम चीज़ों की तफसील बयान की है। युअतबरु फ़ीहिल क़ीमा के लफ्ज़ से जो फतावा शाम के अंदर है, ये दुर्र मुख्तार की इबारत है। तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 319 शामिया में आगे लिखते हैं लिअन्नल क़ीमता इन्नमा तुअतबरु फ़ी गैरिल मंसूस अलैहि। ये देखिए साफ इबारत अल्लामा शामी ने जो है इसकी सराहत करते हुए नकल कर दिया है। ये इबारत दुर्र मुख्तार मारदुल मुख्तार किताबुज़ ज़कात बाब सदक़तुल फ़ित्र क़ुबैल मतलब फ़ी तहरीर सा वल मुद वल मन वल रित्र, तीसरी जिल्द सफ़ा 319 जो अर्रियाज़ सऊदी अरब का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 364 और 365 दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा। हाशिया इब्न आबिदीन क़िस्मुल इबादात किताबुज़ ज़का बाब सदक़तुल फ़ित्र जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 156 जो सालिह फरफूर का छपा हुआ नुस्खा है मोहम्मद सईद रमज़ान अलबूती वगैरह की तहक़ीक़ के साथ, उसके अंदर ये दमिश्क हिजाज सूरिया से छपा हुआ ये नुस्खा है। उसकी छठी जिल्द 156 सफ़े पर यह नुस्खा भी अब हिंदुस्तान में ज़्यादातर राइज होता हुआ चला जा रहा है। लिहाजा अब मैंने इस मसले की बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तफसील आपको बयान कर दी। अब अगर कोई शख्स इस तरीक़े से सदक़तुल फ़ित्र अदा करना चाहता है उसको खुले तौर पर इजाज़त है, शरीयत में कोई मना और कोई रुकावट नहीं है। हाँ, इतना शरीयत ने ये बयान किया है कि जिस चीज़ को मनसूस बयान किया है उसको हमने मनसूस रखा, उसमें हमको किसी भी तरीके से कोई कमी बेशी करने की रद्द बदल करने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा हमने उसमें कोई तब्दीली नहीं की। गेहूं से अदा करना है आप खुले तौर पर गेहूं अदा कर दीजिए, निस्फ सा जौ से अदा करना है जौ से अदा कर दीजिए, खजूर किशमिश जिस चीज़ से आपको अदा करना अदा कर दीजिए। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों के अलावा एक नई किसी चीज़ से हमको अदा करना है, जैसे आज के दौर में है बेशुमार चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने अभी मज़कूरा मिसाल में बतलाया दूध दही साग सब्ज़ी फल फ्रूट वगैरह। तो इन तमाम चीज़ों से सदक़तुल फ़ित्र अदा किया जा सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अदा करते वक्त कीमत का एतबार होगा, वज़न का एतबार नहीं होगा और ना ही गिनती का एतबार होगा। तफसील अब इस वीडियो की शुरू में जैसा कि मैंने बतलाया उन तमाम सूरतों को देखते हुए आप जिस चीज़ से सदक़तुल फ़ित्र अदा करना चाहे वो अदा कर दीजिए। ये तो आपको सदक़तुल फ़ित्र की बहस थी। कब अदा करना है इसको? बेहतर तरीक़ा ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर ही अदा कर दिया जाए। हम
हम ईद का इंतज़ार करते रहते हैं, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कि सदक़तुल फ़ित्र जो है ये रोज़े की ज़कात है। जैसे अल्लाह ने माल की ज़कात रखी है, जिस्म की ज़कात रखी है, तो रोज़े की ये ज़कात है कि रोज़े के अंदर कमी कोताही हुई तो अल्लाह ताला के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करके हम माफ़ी तलाफ़ी करके, अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि तुमसे जो कमी कोताही हुई तो तुम सदक़तुल फ़ित्र अदा कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारी पूरी अदा कर देगा, पूरी कमी कोताही को दूर कर देगा। लिहाजा ये मुनासिब नहीं कि जिस दिन ईद हो उसी दिन आप अगर किसी को ये चीज़ देते हैं गरीब को, तो ये गरीब कहाँ से अपनी ज़रूरत को पूरी करेगा। इसलिए मुनासिब ये है कि आप रमज़ानुल मुबारक के अंदर ही सदक़तुल फ़ित्र को अदा कीजिए, और यही अफजल तरीक़ा है। गालिबन हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर या हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इस वक्त मेरे जहन में पूरी तफसील उनकी नहीं है, वो अपना सदक़तुल फ़ित्र ईद से पहले अदा कर दिया करते थे। इसलिए हमको भी ईदुल फ़ित्र के आने से पहले सदक़तुल फ़ित्र अदा कर देना है। सदक़तुल फ़ित्र पूरे रमज़ान में कभी भी अदा किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ईद की रात में ही अदा किया जाए या ईद ही के दिन अदा किया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पूरे महीने आप जब चाहे अदा कर दे, अल्लाह ताला आपका ये अदा कर देगा। लिहाजा इस सदक़तुल फ़ित्र को सिर्फ मदरसे ही के अंदर दे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। मस्जिद में तो सदक़तुल फ़ित्र का देना जायज़ ही नहीं है। अब सदक़तुल फ़ित्र क्यों गरीब, मिस्कीन, मुहताज, ज़रूरतमंद सबको दे सकते हैं। मदरसे में भी दिया जा सकता है, बेवा, यतीम, मुहताज या और जो कोई भी है आपके आस पड़ोस में सबको दिया जा सकता है। इसलिए इसके अदा करने के हमको जल्द से जल्द फ़िक्र करनी चाहिए। इसी बात को मुझको इस वीडियो के अंदर बतलाना था। अब इंशाअल्लाह अगली वीडियो जो बयान की जाएगी वो ये कि रोज़े का फ़िदिया क्या है इंशाअल्लाह।